بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مکہ کے مقدس مقامات تک پہنچنے میں اسرائیلی جرنلسٹ کی مدد پر سعودی شہری گرفتار۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان اناج ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں سمجھوتا، ترکی میں کامیاب بات چیت۔ سری لنکا میں احتجاجیوں پر فوج کا کریک ڈاؤن، کولمبو میں کیمپ اکھاڑ دیا گیا، دنیش گناوردھنے نئے وزیر اعظم۔ لیبیا کی ترپولی میں جھڑپیں، کئی ہلاک اور زخمی، صدارتی کونسل نے فریقوں سے کہا جنگ روکیں۔ سیریا کے ادلیب میں رشیا کا حملہ، 7 ہلاک، جولان پہاڑیوں کی طرف سے اسرائیل کی بمباری، 3 فوجی جاں بحق۔ آئرلینڈ میں داعش میں شامل ہونے کے لیے سابق سپاہی لیزا اسمتھ کو 15 مہینے جیل کی سزا۔ نپور شرما کو ہلاک کرنے کے لیے پاکستانی نوجوان سرحد پار کر کے انڈیا پہنچ گیا، بی ایس ایف نے کیا گرفتار۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ جاری، جمعے کو بھی کارروائی متاثر۔ سی بی ایس ای 10ویں جماعت کے نتیجے جاری، 94% سے زیادہ امیدوار کامیاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لیبیا کے دارالحکومت ترپولی میں الگ الگ گروپوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور کئی لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ صورتحال اور بگڑ سکتی ہے اور خانہ جنگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جمعے کی صبح ریڈیسن بلیو ہوٹل کے قریب جھڑپیں شروع ہوئیں۔ اس علاقے میں کئی سرکاری عمارتیں، غیر ملکی سفارت خانے اور عالمی تنظیموں کے دفتر ہیں۔ ترپولی کے ایک مقامی شخص نے بتایا کہ جھڑپوں میں کم سے کم ایک مرد اور ایک بچہ ہلاک ہوئے۔ بعد میں میڈیکل سورسز نے بتایا کہ کم سے کم 5 لوگ مارے گئے۔ ایمبولینس سروس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کئی زخمیوں کو ہاسپٹلز میں لایا گیا ہے۔ لیبین فوج کے 444 بریگیڈ نے لڑائی روکنے کے لیے مداخلت کی اور جھڑپوں کے مقام پر پوزیشن سنبھال لی۔ صدارتی کونسل کے ایک بیان میں فریقوں سے کہا گیا کہ وہ لڑائی روکیں۔ پچھلے مہینے میں بھی 2 بااثر ہتھیار بند گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ لیبیا میں فی الحال 2 لیڈرز خود کو وزیر اعظم قرار دے رہے ہیں۔ 2011 میں ڈکٹیٹر معمر قذافی کو نیٹو کے ایک آپریشن میں ہلاک کیے جانے کے بعد سے لیبیا میں بدامنی پائی جاتی ہے اور تب سے وہاں پر کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ لیبیا تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے۔ دونوں پرائم منسٹرز کو الگ الگ گروپوں کی تائید حاصل ہے۔ سیریا کے ادلیب میں رشیا کے ایک حملے میں 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ الجدیدہ علاقے میں کیا گیا۔ وائٹ ہیلمٹ تنظیم اور مقامی لوگوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں کم سے کم 4 بچے ہیں جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ 12 زخمیوں میں 8 بچے ہیں۔ یہ کئی مہینوں میں اس طرح کا پہلا حملہ ہے۔ متاثرہ خاندان سے اس واقعے کے بارے میں بات چیت نہیں کی جا سکی۔ رشیا نے 2015 میں سیریا جنگ کے دوران فیصلہ کن مداخلت کی تھی اور جنگ کا رخ موڑ دیا تھا۔ اب حکومت کے مخالفین ادلیب میں جمع ہیں۔ ان میں سے کئی ملیٹنٹ گروپس کو ترکی کی تائید حاصل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ 2011 میں شروع ہونے والی سیریا جنگ میں 3 لاکھ سے زیادہ سویلینز ہلاک ہوئے ہیں۔ سیریا میں اسرائیل کے حملے میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ لندن سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم اور سیریا کی وزارت دفاع نے یہ بات بتائی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی دشمن نے جولان پہاڑیوں کی طرف سے حملہ کیا جس میں 7 سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ سیرین ایئر ڈیفنس نے کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ اسرائیلی فوج نے ان رپورٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ میزائل سیدہ زینب علاقے میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو میں بھی گرے۔ بتایا گیا کہ یہ ایران کا ہتھیاروں کا ڈپو تھا۔ سیریا کی حکومت نے 2 جولائی کو کہا تھا کہ اس نے طرطوس میں ایک حملہ کیا ہے جس میں بعض لوگ زخمی ہوئے۔
2011 میں सीरिया जंग शुरू होने के बाद से इसराइल सीरिया की ज़मीन पर कई हमले करता रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला ईरानियों की जिम्मेदारी है। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया ने सरकारी टेलीविज़न पर एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक कमांडर ने कहा कि खलीज फ़ारस में इसराइल के बढ़ते कदमों से इस्तेहकाम मुतासर होगा। रेयर एडमिरल सैफ बिन नासर ने कहा कि हम मानते हैं कि सह्यूनी निज़ाम खलीज फ़ारस के इलाक़े में अपने कदम जमा रहा है और इससे इस्तेहकाम मुतासर होगा और इसराइल इख्तलाफात के बीज बो रहा है। इसराइल के एक जर्नलिस्ट को गैर कानूनी तौर पर मक्का में दाखिल होने में मदद देने के लिए सऊदी अरब के एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मक्का पुलिस के तर्जुमान ने गैर मुल्कियों को वार्निंग दी कि वो सऊदी अरब के कानून का एहतराम करें। एक दिन पहले इसराइल के एक जर्नलिस्ट ने बाज़ वीडियोस शेयर किए थे जहां वो मक्का के मुक़द्दस मकामात में घूम रहा है। चैनल 13 ने इसराइल के इस जर्नलिस्ट के कारनामे पर फ़ख्र का इजहार किया है। पिछले दिनों अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ वो सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुंचा था। बाइडन इसराइल से पहली डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए जद्दा पहुंचे थे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने इस सऊदी शहरी की गिरफ्तारी की खबर दी है। इस वीडियो में एक इसराइली शहरी के साथ साथ एक सऊदी शहरी को भी देखा जा सकता था जिसके चेहरे को ब्लर किया गया था। सऊदी हुकूमत के एक तर्जुमान ने बताया कि किसी भी गैर मुस्लिम की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसराइली जर्नलिस्ट गिल तमारे के इन वीडियो से दुनिया भर में मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुए थे। इसराइल ने मगरबी किनारे और कुद्स में कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइल आए दिन इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। श्रीलंका में नए सदर और वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बावजूद एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन करते हुए एहतजाजी कैंप्स को उखाड़ दिया। फौज ने एहतजाजी कैंप्स के खिलाफ ये क्रैकडाउन जुमे की सुबह किया और कई ऑर्गेनाइजर्स और प्रोटेस्ट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। बाज़ एहतजाजियों ने कहा कि जुमे की सुबह एहतजाजी कैंप्स पर हल्ला बोला गया और एहतजाजियों पर ज़ालिमाना हमला किया गया। बाज़ एहतजाजियों ने अपने कैंप्स खुद से खाली कर दिए। ऐसा अंदाज़ा है कि धावे के दौरान 10 एहतजाजी बुरी तरह ज़ख्मी हुए। रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क के नए सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली है। श्रीलंका की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोलंबो में एहतजाज के मरकजी मकाम को खाली करा दिया। कई महीनों से लोग इस कैंप में जमा थे। सदर रानिल विक्रमसिंघे ने राजापक्से खानदान के करीबी लीडर दिनेश गुनावर्दने को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। श्रीलंका के एहतजाजी विक्रमसिंघे का भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। एहतजाजी उन्हें फरार सदर गोटाबाया राजापक्से के साथी के तौर पर देख रहे हैं। बाज़ एहतजाजी तंजीमों ने बताया कि फ़ौज के क्रैकडाउन में कम से कम 50 एहतजाजी ज़ख्मी हुए। श्रीलंका में कई महीनों से मौशी मुश्किलों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। रानिल विक्रमसिंघे ने सदर बनने के बाद कहा कि वो पार्लियामेंट के फैसले को कबूल करते हैं और वो मुल्क के मौशी बहरान को हल करने की पॉलिसियां अपनाएंगे। श्रीलंका पार्लियामेंट ने 4 शंबे को उन्हें सदर चुना था। श्रीलंका बदतरीन मौशी बहरान से दो चार है जिसके नतीजे में हुकूमत बदल गई है। कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान अनाज के एक्सपोर्ट के बारे में एक समझौता हो गया है। मालूम हुआ कि इस्तंबुल में जुमे को इस समझौते पर दस्तखत किए गए। अनाज का एक्सपोर्ट बहाल करने के लिए तुर्की बातचीत की मेज़बानी कर रहा था। यूक्रेन जंग की वजह से कई मुल्कों खासतौर पर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मुल्कों में अनाज का बहरान पैदा हो रहा है। कहा जाता है कि ब्लैक सी की बंदरगाहों की नाकाबंदी की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। जहाँ यूक्रेन इसके लिए रशिया को जिम्मेदार ठहरा रहा था, वहीं रशिया का कहना था कि मगरबी मुल्कों की पाबंदियों की वजह से यह सूरत हाल पैदा हुई है। तुर्की के ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन के अनाज के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां हटाने के लिए एक डील कराई है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस डील पर दस्तखत किए हैं। यूक्रेन अनाज पैदा करने वाले दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक है। यूक्रेन जंग की वजह से कई मुल्कों में ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस दौरान यूक्रेन के एक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि हम रशिया पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। मंसूबे के मुताबिक यूक्रेन के जहाज़ अनाज के साथ समंदरी रास्तों से रवाना होंगे और रशिया उन्हें रास्ता देगा। तुर्की इन जहाज़ों की निगरानी करेगा।
यूनाइटेड नेशंस ने भी अनाज का एक्सपोर्ट बहाल करने के लिए बातचीत में मदद दी है। एंटोनियो गुटेरेस वार्निंग दे रहे थे कि अगर अनाज का एक्सपोर्ट बहाल नहीं होगा तो कई मुल्कों में भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। यूक्रेन की फौज ने बताया कि खार्किव और डोनेस्क में रशियन सिपाही भारी बमबारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ रॉकेट हमले भी जारी हैं, लेकिन यूक्रेन के ओहदेदारों ने दावा किया कि रशिया के सिपाही इन दोनों इलाकों में अपने कदम अभी नहीं जमा पा रहे हैं। बरतानिया के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने दावा किया है कि रशिया यूरोप में जासूसी की सलाहियतें खो रहा है, जिसकी वजह से उसे यूक्रेन पर कब्जा जमाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की सेहत के ताल्लुक से बाज़ अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन CIA के चीफ ने खुद कहा है कि पुतिन पूरी तरह से सेहतमंद हैं। आयरलैंड में एक साबिक सिपाही लीजा स्मिथ को आईसिस या दाइश में शामिल होने के लिए 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। जज टोनी हंट ने कहा कि लीजा स्मिथ, जो एक नौ मुस्लिम थी, जानती थी कि वो क्या कर रही हैं और उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। स्मिथ काले रंग का हिजाब पहनकर अदालत में पहुंची। उन्हें मई के महीने में कसूरवार पाया गया था। 2015 और 2019 के दरमियान वो आईएसआईएस या दाइश का हिस्सा थी। वो आयरलैंड में इस तरह की सजा हासिल करने वाली पहली औरत हैं। जज ने सजा को रोकने की दरखास्त रद्द कर दी। 2012 में उन्होंने उम्रा किया था और फेसबुक पर ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो किसी ऐसी जगह रहना चाहती हैं जहां शरीयत लागू हो और वो एक शहीद की मौत मरना चाहती हैं। अदालत को बताया गया कि उन्होंने डबलिन से तुर्की का वन वे टिकट खरीदा और सरहद पार करके सीरिया गई, जहां उन्होंने दाइश की खिलाफत के मरकज रक़ा में वक्त गुजारा। बाद में दाइश की शिकस्त के बाद वो दिसंबर 2019 में अपनी बेटी के साथ डबलिन एयरपोर्ट वापस पहुंची। एक 22 साल पाकिस्तानी नौजवान रिजवान अशरफ सरहद पार करके इंडिया पहुंचा। उसने इंटेलिजेंस एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान बताया कि वो बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा को हलाक करना चाहता था। ओहदेदारों ने बताया कि उसके पास से 2 चाकू भी बरामद किए गए जो उसने पाकिस्तान में खरीदे थे। उसके पास से पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जारी ID कार्ड भी बरामद किया गया। BSF ने रिजवान को 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात इंटरनेशनल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। दस्तावेजात से पता चलता है कि वो पंजाब सूबे के जिले मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो एक इलेक्ट्रिशियन है और उसे खबरों के जरिए पता चला कि नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि उसमें कट्टरपन पैदा किया गया। ये मालूम नहीं हो सका कि उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के केस में साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येदियुरप्पा को राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ लैंड अलॉटमेंट स्कैम में दर्ज FIR के सिलसिले में कार्रवाई खत्म करने से इनकार कर दिया था। पार्लियामेंट में अपोजिशन के गड़बड़ और एहतजाज की वजह से कार्रवाई जुमे को भी मुतासर रही। अपोजिशन पार्टियां महंगाई और रोजमर्रा की चीज़ों पर GST लगाने के खिलाफ एहतजाज कर रही है। एहतजाज की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। CBSE 10वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। 94.4% स्टूडेंट्स कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियों ने 500 में से 500 मार्क्स हासिल किए। इनमें से तानिया सिंह का ताल्लुक बुलंदशहर से है, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। नोएडा की युवाक्षी विग ने भी 500 में से 500 मार्क्स हासिल किए। जुमला 33,432 स्टूडेंट्स ने 95% से ज़्यादा और 1,34,797 ने 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मक्का के मुक़द्दस मकामात तक पहुंचने में इस्राएली जर्नलिस्ट की मदद पर सऊदी शहरी गिरफ्तार। रशिया और यूक्रेन के दरमियान अनाज एक्सपोर्ट करने के बारे में समझौता, तुर्की में कामयाब बातचीत। श्रीलंका में एहतजाजियों पर फौज का क्रैकडाउन, कोलंबो में कैंप उखाड़ दिया गया। दिनेश गुणवर्धन नए वजीर आजम। लीबिया के त्रिपोली में झड़पें, कई हलाक और जख्मी। सदारती काउंसिल ने फरीकों से कहा जंग रोकें। सीरिया के इदलीब में रशिया का हमला, 7 हलाक। जोलान पहाड़ियों की तरफ से इसराइल की बमबारी, 3 फौजी जाँ बहक।
آئرلینڈ میں داعش میں شامل ہونے کے لیے سابق سپاہی لیزا اسمتھ کو 15 مہینے جیل کی سزا۔ نپور شرما کو ہلاک کرنے کے لیے پاکستانی نوجوان سرحد پار کر کے انڈیا پہنچ گیا، بی ایس ایف نے کیا گرفتار۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ جاری، جمعے کو بھی کارروائی متاثر۔ سی بی ایس ای 10ویں جماعت کے نتیجے جاری، 94% سے زیادہ امیدوار کامیاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔